Dear students, today we are taking the topic how is federalism practice. So first point in which we discuss the formation of the state on the basis of the language. If the people raise this demand, the second point related to the language policy. Second point language policy से related है. A second test for the Indian Federation is the language policy. Second test जो है जिसकी through which the federalism is practiced, federalism become strengthened. तो second point जो है वो language policy है. A second test for the Indian Federation is the language policy. Second test Indian Federation का जो था वो language policy को लेकर था. Our constitutions did not give the status of national language or to any one language. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देता. हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को हालांकि एक ऑफिशियल लैंग्वेज का लैंग्वेज के रूप में पहचानी गई है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% पीपल्स और यू कैन से इंडियंस रिसाइडिंग इन इंडिया. हिंदी जो है वो 40% पीपल जो हैं वो बोलते हैं. Therefore there were many safeguards to protect other language. हालांकि जो है बहुत सारे safeguards जो हैं to protect the other language is there. Beside Hindi, there are the 21 other language recognized as scheduled language. हिंदी के अलावा जो 21 दूसरी लैंग्वेज हैं उनको रिकॉग्नाइज करा गया है एक अनुसूची लैंग्वेज के रूप में बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. If any candidate is going to appear for the central government positions, he may choose to take the examination in any of these languages. States too have their own official language. स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसके द्वारा डे टू डे वर्क किया जाता है. Much of the government work take place in the official language of the concerned state. ज़्यादातर जो गवर्नमेंट का काम होता है वो कंसर्न स्टेट की लैंग्वेज के आधार पर होता है जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है. अनलाइक श्रीलंका के विपरीत द लीडर ऑफ आवर कंट्री adopted a very cautious attitude in spreading the use of the Hindi. श्रीलंका के विपरीत हमारे देश के लीडर्स ने एक कॉशियस एटीट्यूड अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया फॉर द सेकिंग ऑफ टू स्प्रेड द यूज ऑफ हिंदी. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965. कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज का यूज जो था दैट वाज स्टॉप्ड इन 1965. 1965 में रोक दिया गया था. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of the English continue. हालांकि जो बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे they were raising their demands that use of English must be continued. In Tamil Nadu, this movement took a violent form. तमिलनाडु में इसने एक हिंसात्मक रूप ले लिया था. The people were demanding that English language must be used as a official language
the central government responded by agreeing to continue the use of English along with the Hindi for official purposes. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने पोलाइटली जो है रेस्पॉन्ड किया कि यूज ऑफ इंग्लिश जो है एज वेल एज हिंदी इट में बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज. मैनी क्रिटिक think that this solutions favor the English speaking elites. कुछ जो आलोचक थे वो ये सोच रहे थे कि if the government will take favor of the English speaking English, it will consider that the government is showing their inclination towards the इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट्स. कि गवर्नमेंट अगर कुछ सालों से ये मानते थे कि ये सॉल्यूशन जो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ करने का है, ये जो है इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट्स के फेवर के लिए गवर्नमेंट ने किया है. प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हिंदी को प्रमोट करने का जो प्रमोशन था, प्रमोट किया गया. इट वाज कंटिन्यूस टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी रही टू प्रमोट द हिंदी को प्रमोट किया गया और हिंदी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया. और promotion does not mean that central government can impose Hindi on the state where people speak a different language. Here promotion does not means, यहाँ promotion का मतलब ये नहीं है कि central government is going to impose the Hindi on the states where people speak the different language. जहाँ लोग जो हैं अलग लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट जो है हिंदी इम्पोज करने जा रही है. द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, जो लचीलापन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ये शो किया गया, इट हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन. ये लचीलापन जो था लैंग्वेज की तरफ शो करना कि आप जो स्टेट में लैंग्वेज बोली जाती है उसमें ऑफिशियल वर्क किया जा सकता है, इंग्लिश को भी यूज़ किया जा सकता है. दिस फ्लेक्सिबिलिटी ये दिखाती है कि हमारे इंडियन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर जो थे, उन्होंने देश की काफ़ी सहायता करी कि ऐसी सिचुएशन ना हो जैसे कि श्रीलंका में हुई थी.